اس کی مقدس ہیکل کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی خاص نعمت ہے اور اس کے لیے بڑے ایماندار ترساں رہے جن کو دیکھنا میسر نہیں تھا، وہ اس کے لیے بہت کچھ کرتے رہے لیکن پھر بھی نہ بنا سکے۔ بہت سے لوگ تاریخ میں جو اسیری میں چلے گئے وہ اس بات کے لیے ترساں تھے کہ ہم تیری مقدس ہیکل میں اپنے ماتھے کو جھکائیں، اپنے سر کو جھکائیں، اور ترستے ترستے وہ اگرچہ وہاں نہیں پہنچ پائے لیکن اس طرف رخ کر کے انہوں نے سجدہ ریز ہو کر خداوند کی تعظیم کی۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے، اگرچہ اس سے پہلے پیڑھیاں بھی یہاں پر رہیں، شاید انہوں نے خدا کے لیے بہت کچھ کیا ہو، لیکن جو کچھ آپ کی زندگی میں خدا نے کام کیا ہے ان کی زندگی میں نہیں کیا، اس لیے میں نے آپ کو مبارکباد دی ہے۔ سو کلام خدا میں سے آج ہم دیکھیں گے، کلام خدا میں سے رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے۔ تو میں دعوت دوں گا کہ پیارا بیٹا حنن اس تلاوت میں رہنمائی کرے۔ رومیو کے نام مقدس پولس کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 17ویں آیت کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے۔ اور خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرے تو ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آیت پر اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، چند لمحوں کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور بڑی عاجزی سے خداوند تجھ سے منت کرتا ہوں۔ تیرے لوگ تیرے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ اے باپ، میں کمزور ہوں لیکن تیرے بیٹے یسوع کا لہو مجھے زور بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں گٹوں اور تو بڑھے، اور تو اپنے لوگوں سے کلام کر۔ تیرا کلام میری زندگی میں اور ان تمام زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ میرے عزیز، لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار ہم سب مل کر کلام خدا کے اس حصے کو پڑھیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ میرے عزیز،
कलाम खुदा के इस हिस्सा में से यह काफी लंबी है और इसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इसके पहले हिस्से पर गौर करें। अगर फर्जंद है तो वारिस भी हैं। तो मेरे अजीज, लफ्ज वारिस जो है ये तकरीबन 200 मर्तबा कलाम मुकद्दस में आया है। और कलाम खुदा की रोशनी में अगर हम देखें, आमतौर पर किसी मुल्क या हिस्से की मिरास में से लेने को जाहिर करता है। वारिस लफ्ज जो है ये किसी मुल्क, किसी मिरास, किसी हिस्से की मिरास को लेने के लिए जाहिर करता है। और कलाम खुदा में अगर देखें तो इब्रानियों के तलक से इब्रानियों का ये बुनियादी असूल था कि मुल्क या जायदाद की जो जायदाद है ये एक शख्स की मलकियत की बजाय खानदान के साथ उसका तल्लक हो। इसकी वजह यह थी चूंकि जमीन खुदा ने अपने लोगों को यानी बनी इस्राइल को दी थी, इसलिए वो जरूर ही खानदान में रहे। मूसवी शरीयत के मुताबिक वारिस सिर्फ वो होता था जो कानूनी तौर पर जो किसी शख्स की बीवी होती, उसके बेटे उसके वारिस होते थे। और हम देखते हैं कि कलाम खुदा के मुताबिक जब भी किसी के बेटे वारिस होते तो उनमें पलौठा जो होता उसका दूना हिस्सा होता था। बाकी बेटों के एक एक हिस्से होते थे और पलौठे के लिए 2 हिस्से थे। और उसके लिए शराइत थी कि वो खानदान की मस्तूरात, औरतों की देखभाल करे और जो कुछ उनके फराइज हैं अखराजात के, उनको पूरे करे। और कलाम खुदा में हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी का बेटा ना होता तो बेटियों को बाप की मिरास का हिस्सा मिलता था। अगर हम गिनती की किताब के 27 बाब में देखें तो जब मूसा और अलियसर काहिन दूसरी मर्दमशुमारी के बाद बनी इस्राइल को वो जमीन, वो मुल्क जो उनके बाप दादा के साथ खुदा ने अहदो पैमान किया था, वो तकसीम करने लगे, तो खुदा ने कहा कि हर कबीले में से अफराद के हिसाब से जिसके ज्यादा अफराद है जिस कबीले के, उसे ज्यादा जमीन दी जाए, जिसके कम है उसे कम दी जाए, लेकिन कबीलों के हिसाब से मुल्क तकसीम किया जाए। तो वहां पर यूसुफ के बेटे मुनस्सी के खानदान में से एक शख्स था जिसका नाम सिला फहाद था और उसके कोई बेटा नहीं था, उसकी बेटियां ही थीं। और जब मूसा और अलियसर काहिन खैमा इज्तिमा में थे और ये सिलसिला चल रहा था, तो सिला फहाद की बेटियां खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर आई और मूसा से कहा कि हमारा बाप बियाबान में मर गया और उसका कोई बेटा नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा बाप जो लोग कोरा के साथ मिल गए थे उस गुनाह में शामिल नहीं था, वो अपने ही गुनाह में मरा और उसके कोई बेटा नहीं और हम उसकी बेटियां हैं, इसलिए जरूरी है कि हमारे बाप के भाइयों में हम अपने बाप की मिरास की वारिस हैं।
और मूसा इस मसले को लेकर खुदावंद के हजूर चला गया और खुदा ने कहा कि सिराफ हाथ की बेटियां ठीक कहती हैं, उन्हें उनके बाप के भाइयों में मिरास दी जाए, और अगर कोई बेवा होती, उसका कोई बेटा ना होता, तो उसके लिए यह जरूरी था कि उसके साथ जो उसके खामन का रिश्तेदार है वो उससे शादी करे, वो उस मिरास का वारिस हो साथ। लेकिन अगर कोई करीबी शादी नहीं करता तो जो उससे बाद में करीबी है उसके लिए हक था कि वो उससे शादी करे। इसलिए बोइस ने रूथ से शादी की थी। और अगर कोई बेवा के साथ शादी नहीं करता तो जब तक बेवा जिंदा रहती वो उस जमीन की वारिस होती, लेकिन जब मर जाती तो फिर उसकी जायदाद उसके खामन के रिश्तेदारों में तकसीम कर दी जाती। इसलिए मेरे अजीज, कलाम खुदा में जो ये मिरास का लफ्ज आया है, ये एक खास हकीकत रखता है। कलाम पाक में लफ्ज मिरास में उसी जायदाद ही को बियाबान में तकसीम करना नहीं था, बल्कि ये खुदा की कलाम पाक में से जो खास बरकतें हैं खुदा के लोगों के लिए, उनको भी मिरास में लेना है। और कलाम खुदा में अगर हम देखें तो सुलेमान ने जब दुआ की, हैकल बनाई, तो उसने यहां पर इस बात को आश्कारा किया कि खुदावन तेरी कौम के लोग अगर गुनाह के सबब से आसमान बंद हो जाए, तो जब खुदावन ये तेरे हजूर आजिज हो जाए, जब तेरे हजूर दुआ करें, जब तेरा इकरार करें, जब तेरे पास तेरे कदमों में आजिज हो जाए, तो तू इनकी दुआ को सुनकर आसमान को खोल देना, क्योंकि ये तेरी मिरास है। मेरे अजीज, जिस तरह खुदा हमारी मिरास है, जिस तरह हम खुदा के मिरास में उसके वारिस हैं, हम खुदा की मिरास भी हैं। और कलाम खुदा में हम देखते हैं, ज़बूर नवीस कहता है, तू मिरास है मेरी, मेरा तू प्याला, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। और कलाम खुदा में मुकद्दस पौलुस इस बड़े भेद को आश्कारा करता है कि अगर हम फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। किसके? खुदा के वारिस, और मसीह के हम मिरास। मेरे अजीज, मिरास का तस्वर नए अहदनामा में नुमाया है, लेकिन अब ये मसीह की शख्सियत और काम से मुंसलिक है, जो बेटा होने के बायस वारिस है। कलाम खुदा में अगर हम देखते हैं, जब खुदा यीशु यरदन पर यूहन्ना के पास गया बपतिस्मा के लिए, तो यूहन्ना कहता है, मैं इस लायक नहीं कि तुझे बपतिस्मा दूं, मैं तो तुझसे लेने का मुहताज हूं। तो खुदा यीशु ने कहा, अब तू होने ही दे, हमें इसी तरह सारी राष्ट्रवादी को पूरा करना है। और कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा यीशु ने अपने आप को इस बड़े मंसूबा के लिए खुदा के हजूर पेश किया, और यूहन्ना ने हमारे खुदावन मुनज्जी को जब बपतिस्मा दिया, जब उसने इस राष्ट्रवादी को पूरा किया, जब यीशु
कलाम खुदा में ये बात जो हमने देखी है, इसके अंदर ये गहरा मुकाशफा है। खुदावंद यीशु को जब 8 दिन के बाद हैकल में पेश किया गया, ये बड़ी मुकद्दस रस्म थी। कोई आवाज नहीं आई। जब यीशु 12 बरस की उम्र में हैकल में जाकर फकीरों फरीसियों से गुफ्तगू करता है, कोई आवाज नहीं आई। लेकिन जब वो अपने आप को खुदा के एक मंसूबे के लिए पेश कर देता है, इस राष्ट्रवादी को पूरा करता है, और फिर वो खुदावंद के कलामे मुकद्दस के मुताबिक अपने आप को इस खुदा के नजात के मंसूबे के लिए पेश कर देता है और बपतिस्मा लेता है, तो फिर ये आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और इसके अंदर ये मुकाशफा है कि जितने उसके बेटियां बेटे उस राष्ट्रवादी को पूरा करते हैं, जितने लोग इस निशान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, जो यीशु के वसीला से पानी में जाकर उसमें मरते हैं और फिर जिंदा होते हैं, उनके लिए भी यही अल्फाज है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। क्योंकि वो अपने खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, अपने बाप की मर्जी को पूरा करते हैं, अपने बड़े भाई की हदायत पर चलते हैं। उसने कहा पूरी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। कलामे खुदा में मेरे अजीज, अगर हम इब्रानियों का खत पढ़े तो वहां पर मेरे साथ अगर निकालना चाहें, इब्रानियों का खत उसका पहला बाब, इब्रानियों के खत के पहले बाब लिखा है, अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम किया। इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। मेरे अजीज, खुदा ने अपने बेटे यीशु को इस जमीन पर भेजा। मुकद्दस पौलुस कहता है कि अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम किया, लेकिन इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसने उसे सब चीजों का वारिस ठहरा दिया। तो खुदावंद यीशु सब चीजों का वारिस है, वो पलौठा है और उसने पूरी फरमाबरदारी की है। कलाम खुदा में लिखा है, फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा प्यारा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। और फिर लिखा है कि जब पलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। मेरे अजीज, कलाम खुदा में हम देखते हैं कि दुनिया में जब कोई वारिस होता है, अगर बाप की जमीन एक मरबा है तो उसमें से सब बेटों को हिस्सा मिलता है, चाहे 1 एकड़ हो चाहे 1 प्लाट हो, उसका बेटों को हिस्सा मिलता है। लेकिन यहां पर जो बाप है जिसका वारिस उसका बेटा यीशु है, वो सारी जमीन का खालिक है, वो हर चीज को बनाने वाला है, वो इस लायक है कि उसे हर फर्द, हर नूरी, हर नारी, हर खाकी सजदा करे। इसलिए कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने फरिश्तों में से कब किसी से कहा, लेकिन जब बेटा आया तो उसने कहा कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें, क्योंकि वो अपने बाप के जलाल का वारिस है। खुदा ने उसे सब चीजों का वारिस ठहराया है।
अपने खत में लिखता है कि वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, जिसके लिए मुकद्दस पौलुस कहता है कि हम अगर फर्जंद हैं तो फिर उसके वारिस हैं। जिस तरह खुदावंद यीशु बेटा होने के सबब से सब चीजों का वारिस है, बाप की हर चीज का वारिस है, उसे कायनात की हर चीज पर कुदरत हासिल है, वो पानियों पर चलता है, तूफानों को थमा देता है, अंधों की आंखें खोलता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, जो कुछ नहीं उसको हुक्म देता है और वो वजूद में आ जाता है। कलाम खुदा में लिखा है कि जो कुछ नहीं भी जब यीशु से हुक्म दे देता है तो वो वजूद में आ जाता है। अगर से पतरस कहता है, ऐ खुदावन हमने सारी रात बड़ी मेहनत की लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। वही इलाका था, सारी रात पतरस अपने साथियों के साथ जाल डालता रहा, खींचता रहा, डालता रहा, खींचता रहा, रात गुजर गई, कुछ हाथ न आया। लेकिन जब यीशु ने हुक्म दिया कि पतरस शिकार के लिए जाल गहरे में डाल, और लिखा है जब पतरस ने डाला तो इतनी मछली आ गई, पतरस उसके साथी, उसके दूसरे कश्ती वाले साथी उसे खींचने से वो खुदा गए, मजबूर हो गए, मछलियां खींची नहीं जा रही। जब कश्ती में डालते हैं कश्तियां भरी जाती हैं। पतरस खुदावन के हुजूर झुक गया, खुदावन मैं गुनाहगार हूं। जब उसकी कुदरत को देखा, जब उसके कलाम को देखा, जब उसकी असमत को देखा, जब उसकी शान को देखा, जब उसके जलाल को देखा, जब उसकी विरासत को देखा, ये तो जो कुछ नहीं जब उसे हुक्म देता है तो वजूद में आ जाता है। कलाम खुदा में लिखा है, रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम उसके बेटियां और बेटे हैं, और हम उसको जिसने उसके जलाल को हासिल किया, जिसने उसका पलौठा होने के हक से जिसको सब कुछ पेश कर दिया गया, सब चीजों का वारिस ठहरा दिया गया, जब हम उसे कबूल करते हैं। यूहन्ना कहता है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हम उसे कबूल करके, उस पर ईमान लाकर, उसमें नए सिरे से पैदा होकर, अपना दिल उसके सामने डेल कर, अपने गुनाहों का इकरार करके जब हम उसके हुजूर आजिज़ हो जाते हैं तो फिर वो हमें ये हक देता है, हमें ये हक बख्शता है, हमें ये इख्तियार देता है, हमें ये डिप्लोमा देता है, हमारे पास समझ आ जाती है कि हम बाप के फर्जंद हैं, हम उसकी मिरास के वारिस हैं, हम मसीह के हम मिरास हैं। लेकिन मेरे अजीज, वारिस बनने के लिए हमें यीशु की तरह आजिज़ी अख्तियार करने की जरूरत है। हमें वारिस बनने के लिए यीशु की तरह आजिज़ होना है, अपने आप को उसके हुजूर पेश करना है। अगर हम फिलिपियों का खत उसका दूसरा बाब कलाम खुदा में से देखेंगे, फिलिपियों का खत उसका दूसरा बाब और 5वीं आयत में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा,
बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया, इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत दोबारा की और खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। मेरे अजीज, जब तक हम यीशु की तरह बाप के फरमाबरदार नहीं बन सकते, हम उस मिरास के वारिस नहीं हो सकते। हम यीशु को कबूल करके बेटियां और बेटे बन सकते हैं, लेकिन उस मिरास को पाने के लिए हमें यीशु की तरह फरमाबरदारी करने की भी जरूरत है। हमें यीशु की तरह उसके फरमाबरदार फरजंद बनने की जरूरत है। कलाम खुदा में अगर हम पहला करंथियों उसका 5वां बाब देखें, इससे पहले कि इस हवाले को पढ़ें, हमें मिरास के वारिस होने के लिए फरमाबरदारी करनी है। किसी दानिशवर खादम ने बताया कि हमें इस तरह भागना है, दौड़ना है कि हम जीते। हमें जीतने के लिए दौड़ना है, किसी को हराने के लिए नहीं दौड़ना। हमारा जो असल मुखालिफ है उसे तो हम बुरे बैठे हैं, जो इब्लीस है, लेकिन जो हमारे अपने हैं, जो हमारे साथ हैं, जो हमारी कलीसिया का हिस्सा है, जो हमारे चर्च का हिस्सा है, जो हमारी टीम का हिस्सा है, जो हमारी प्रस्तश में हमारे मददगार हैं, जो खुदा के काम के हमारे साथ चलने वाले हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, कभी कभी हम लोगों को हराने के लिए दौड़ते हैं। हम सब ने जीतना है, हम सब ने दौड़ना है और जीतने के लिए दौड़ना है, इनाम हासिल करने के लिए दौड़ना है, लेकिन किसी को हराने के लिए नहीं दौड़ना। हमारी मंजिल ये ना हो कि ये मुझसे आगे निकल रहा है, मैं इसके रास्ते में रोड़ा रखूं। जब हम जीतने के लिए दौड़ेंगे निशान की तरफ, तो फिर हम जीतेंगे। लेकिन अगर हम किसी को हराने के लिए दौड़ेंगे तो फिर शायद ना जीत सके। कलाम खुदा में गिनती की किताब में एक शख्स के मुतल्लिक है जिसको नबी का लक़ब दिया गया है, जिसका टाइटल नबी है, जिसको कहते हैं बलाम नबी। और जब वो बनी इस्राइल पर लानत करने के लिए जाता है तो खुदा उस लानत को बरकत में बदल देता है। आप जानते हैं वो कहता है कि मैं इस्राइल पर कैसे लानत करूं जिस पर खुदा लानत नहीं करता, मैं उसको कैसे फटकारूं जिसे खुदा नहीं फटकारता। लेकिन जब वो यहां पर हार गया है तो फिर उसने एक और राह अख्तियार की। उसने बनी इस्राइल को हराने के लिए मुआदियों को यह तरकीब दी थी कि जब तुम अपनी बुत परस्ती की महफिलें सजाओ तो बनी इस्राइल के जवानों को दावत दो, वो आकर मुआबी औरतों के साथ बदकारी करें और बुतों की पूजा करें और वो अपने खुदा से मुनहरफ हो और वो कमजोर होकर मगलूब हो। और ऐसा ही हुआ। जब मुआबियों ने अपनी बुत परस्ती की महफिलें रचाई, बनी इस्राइल के जवानों को उनकी औरतों ने दावत दी, उन्होंने बदकारी की, उन्होंने बुत परस्ती की और खुदा इससे नाराज हो गया। इस्राइल में एक बड़ी वबा आई तो भला कितने लोग मर गए?
24,000 कितने 24,000 ये नंबर बहुत बड़ा है। और मुआवियों के पास ये जरूरत नहीं थी कि वो 1,000 भी मार सकते, वो 100 भी मार सकते, वो 10 लोग भी मार सकते, वो किसी एक को ही मार दे, उनकी ये जरूरत नहीं थी। लेकिन जब बलाम नबी ने जो खुद हारा हुआ था, लोगों को हराने के लिए ये हथियार इस्तेमाल किया, मुआवियों को ये तरकीब दी, तो उसका अंजाम ये हुआ कि बनी इस्राइल ने अगरचे वबा ने 24,000 लोगों को मारा, लेकिन जब अलीअज़र काहिन ने एक मुआवी लड़की को एक इस्राएली अपने खेमे में लेकर आया और उसने तलवार की धार से उन दोनों को छेद दिया, तो खुदा का गज़ब ठंडा हुआ। और कलाम खुदा में लिखा है, खुदा ने कहा कि मुझे अलीअज़र ने मेरे गज़ब को ठंडा किया है। और लिखा है कि फिर वबा रुक गई। और बलाम के लिए तलख बात यह हुई कि कलाम खुदा में लिखा है कि इस्राएलियों ने मुआवियों के साथ बलाम को भी तलवार की धार से कत्ल कर दिया। मेरे अजीज, हमें इस तरह दौड़ना है कि जीते, किसी को हराने के लिए दौड़ना नहीं है, हमें जीतने के लिए दौड़ना है ताकि हम जीते और हम सबको जीतना है। और जो हार जाए, अगर वो बलाम की राह तैयार करे तो उसका अंजाम तलख होगा। ऐसे लोगों को हम जता नहीं सकते, लेकिन जो लोग खुदा की हजूरी में जो ऐसी राह तैयार नहीं करते, अगरचे वो गमराह हो जाए, अगरचे वो गुनाह की दलदल में फंस जाए, जब उनके लिए ईमानदार लोग दुआ करते हैं तो वो बहाल हो सकते हैं। खुदा ऐसे लोगों के लिए दुआओं को सुनता है जो किसी को हराना नहीं चाहते। अगर वो अपने किए पर पछताते हैं तो यकीनन खुदा ऐसे लोगों को बहाल करता है, बरकत देता है। मेरे अजीज, हमें जीतने के लिए हमें किसी को हराना नहीं है। इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। कभी कभी हम दूसरों के सामने रोड़े रखते हैं, हम चाहते हैं कि ये कोई गलती करे, ये इनसे कोई खता हो, कोई कमी हो, आए ताकि इनका अख्तियार जाए और हमारा अख्तियार आए। लेकिन मेरे प्यारे लोगों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए कि खुदा का काम चाहे आपके पास हो, आपके गांव में हो, आपके लोगों में हो, आपकी कलीसिया में हो, चाहे समुद्र पार भी हो, तो कभी खुदा के काम की मुखालफत नहीं करनी है। खुदा के काम करने वालों का साथ देना है, खुदा के काम में रोड़ा नहीं रखना है। अगर ऐसा करेंगे तो यकीनन वक्त आएगा कि खुदा तुम्हें सरबलंद करे, क्योंकि तुम किसी को हराना नहीं चाहते, तुम जीतना चाहते हो, तुम यीशु के पैरोकार बनना चाहते हो, तुम यीशु जैसा मिजाज इख्तियार करना चाहते हो, तुम निजात के मंसूबे में खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहते हो। इसीलिए खुदावंद कहता है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मेरे अजीज, उस मिरास को वही लोग हासिल करेंगे जो फरमाबरदारी करेंगे, जो यीशु की तरह, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने अपने आप को खाली कर दिया, इस बात को कब्जा में ना रखा, उसने इंसानी शक्ल अख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया, यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत दोबारा की। फिर खुदा ने भी उससे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और अगर हम फरमाबरदार बनकर, फरमाबरदार फरजंद बनकर उसके नक्शे कदम पर चलेंगे तो जरूर उस मिरास के वारिस होंगे, जिसके मुतल्लिक मुकद्दस पौलुस कहता है कि अगर हम फरजंद हैं तो मिरास के वारिस हैं। मिरास हमारी है, हम खुदा की मिरास के वारिस हैं, हम मसीह के हम मिरास हैं। लेकिन अगर फरमाबरदार नहीं तो ये ना
नामुमकिन बात है। खुदा यीशु ने मत्ती की इंजील के 13वें बाब की 28 से 8 में लिखा, अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद है और कड़वा बीज अबलीस के फर्जंद है। हमें जानना है कि हम बादशाही के फर्जंद हैं या अबलीस के फर्जंद है। कलाम खुदा में अगर हम पहला ग्रंथियों उसके 5वें बाब की 19 और 9 से 11 देखें तो यहां पर लिखा है, पहला ग्रंथियों उसका 5वां बाब नामी अपने मुकद्दस पलूस कहता है, मैंने अपने खत में तुमको ये लिखा था कि हरामकारों से सोबत न रखना। ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचियों या जालिमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में तो तुमको दुनिया ही से निकल जाना पड़ता। मुकद्दस पलूस ईमानदारों को, करंथस के लोगों को यह लिखता है कि मैंने अपने खत में तुमको यह लिखा था कि हरामकारों से सोबत न रखना। वो कहता है ये नहीं कि दुनिया के हरामकारों को या लालचियों या जालिमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं है। इनमें हमने यीशु की बशारत देनी है, इनको हमने यीशु की तारीफ देनी है, इनको हमने निजात की राह का दर्श देना है, इनको हमने उस मिरास की निशानदही करानी है। आगे लिखा है, लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुतप्रस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक भी ना खाना। मुकद्दस पलूस यहाँ पर वजाहत करता है, निशानदही करता है। वो कहता है मैंने ये नहीं कहा कि जालिमों, शराबियों, ज़नाकारों, बदकारों, दुनिया के गुनाहगारों के साथ मिलना ही नहीं। असल बात यह है कि जो बलाम की राह पर चलने वाले हैं, जो हार जाते हैं और दूसरों को भी हराने की कोशिश करते हैं, ऐसों के मुतल्लिक़ कैसा है, दर हकीकत जो असल बात है वो ये है कि ऐसों के साथ जो हरामकार, लालची, बुतप्रस्त, गाली देने वाले, शराबी, जालिम, ऐसों के साथ सोबत भी ना रखना, क्योंकि ये उस मिरास के वारिस नहीं होंगे। और फिर 6वें बाब की अगर हम नामिया देखें तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मेरे अजीज, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बच्चों, नौजवानों, बेटियों, हम वारिस की बात कर रहे हैं। हमें देखना है, निशानदही हो रही है, कौन वारिस है, कौन मिरास का हकदार है, कौन खुदा का वारिस है, कौन मसीह का हम मिरास है। हमें अपने आप को जांचना है, देखना है। अगर हमारी जिंदगी में ये काम है तो हम वारिस नहीं है। मुकद्दस पलूस कहता है अगर फर्जंद है तो वारिस भी है। क्या खुदा के बेटियां, बेटे ऐसे काम करते हैं? लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? अगर कोई ऐड पढ़ना चाहे तो वो बुलंद आवाज में पहला ग्रंथियों 6वें बाब की नामी आपकी तिलावत करें। मेरे अजीज, हमें उस मिरास को पाने के लिए, मसीह के हम मिरास बनने के लिए अपने आप को उसके ताबे करना है। हालेलुया। कलामे खुदा में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि खुदा बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब ना खो, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुतप्रस्त, ना शराबी, ना ज़नाकार, ना
मिरास को पाना है। हमने यीशु के हम मिरास बनना है। हमने खुदा की मिरास के वारिस होना है। हमें बादशाही में जाना है। मेरे अजीज, अगर जिन कामों की निशानदही मुकद्दस पलूस कर रहा है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कर रहे हैं और हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारे पास वक्त है। मैं बता रहा हूं कि अगर हम इन कामों को नहीं छोड़ेंगे तो फिर नहीं जाएंगे। अगर छोड़ेंगे तो फिर जाएंगे, फिर बादशाही के वारिस होंगे। कलाम खुदा में लिखा है कि बादशाही के बेटे अंधेरे में डाले जाएंगे। कौन? जो बेटे बने हुए हैं, जो बेटियां बनी हुई हैं, लेकिन फिर दुनिया की ख्वाहिशों से मगलूब होते हैं, दुनिया की रंगीनियों का शिकार होते हैं, जिस्म के ख्वाहिशों से मगलूब होते हैं और फिर उनमें जाकर फंस जाते हैं। फिर ऐसे काम करते हैं जिससे खुदा को नफरत है, जिनको सामने रखते हुए कलाम खुदा फरमाता है कि खुदावन की आंख बदी को देख नहीं सकती। आज तो वो हमारे दरमियान, चाहे हमारी जिंदगी में कैसे भी काम है, वो उतर आता है, वो हमें बुलाता है, वो हमसे कलाम करता है, वो हमसे प्यार करता है, हमें अच्छी अच्छी नेमतें देता है, बरकतें देता है, खाने को देता है, पहनने को देता है, पीने को देता है, जिंदगी में बेशुमार मुसाइल हमारे हल करता है, हमारी दर गुजर कर रहा है। लेकिन उस जलाल के मुतल्लक लिखा है, वहां पर के मुतल्लक आगाह किया गया है कि खुदावंद की आंख बदी को देख नहीं सकती। वहां पर कोई बदकार नहीं जाएगा। उस बादशाही में कोई बदकार उसका वारिस नहीं होगा। इसलिए लिखा है कि बादशाही के बेटे अंधेरे में डाले जाएंगे। जिन्होंने नाफरमानी की है, जिन्होंने मुस्तरफ की तरह अपना हिस्सा उजाड़ दिया है, लेकिन फिर पलट आए हैं, फिर इकरार किया है, फिर कहते हैं खुदावन ऐ मालिक, ऐ बाप, मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहूं, मुझे अपने नौकरों जैसा रख ले। ये भी आजिज़ी है उसकी, जिसने अपने आप का इकरार किया है, अपने गुनाहों का इकरार किया है और कहा है कि मैं इस लायक नहीं कि मुझे अपना बेटा बना ले, मुझे नौकरों जैसा रख ले। लेकिन बाप ने किस नौकर जैसा रखा है? जो नौकरों का मुख्तार है, जो 8 घंटे काम करता है, जो 6 घंटे काम करता है, जो 4 घंटे काम करता है, जो 2 घंटे काम करता है, या वो सुपरवाइजिंग करता है, दूसरों से काम कराता है। लिखा है बाप को बेटे पर तरस आया, उसने उसको अंगूठी पहनाई, फिर बेटा होने का इख्तियार दिया, फिर बहाल कर लिया, फिर उसने उसे अपना बेटे होने का ऐलान कर दिया और उसे अपने गले लगाया, उसे बेटा बना दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अभी वक्त है, अभी वक्त है, अभी वक्त है। आए अपने सरों को झुकाएं, आए अपनी आंखों को बंद करें। चाहे हमारी जिंदगी कैसी भी है, लेकिन अभी वक्त है मुसरफ की तरह वापस आ जाए, इकरार कर ले। अगर उस मिरास के वारिस बनना चाहते हैं, अगर खुदा के वारिस बनना चाहते हैं, अगर मसीह के हम मिरास बनना चाहते हैं, तो अभी वक्त है। अपनी जिंदगी को देखें, जांचें। अगर जिस्म की ख्वाहिशों के गुलाम ही रहेंगे, जो करते हैं करते ही जाएंगे, तो फिर हम ही हैं जो बादशाही के बेटे अंधेरे में डाले जाएंगे। हमने यीशु को कबूल किया है, हमने उसमें नई जिंदगी का हमने इंतखाब किया है, हम उसके लहू से धुले हैं, लेकिन अपने कामों की बदौलत हमें अंधेरे में जाना है। आए आए दुआ में लग जाए। आए हम अपने अपने लिए, एक दूसरे के लिए, ईमानदारों के लिए,
खुदा के लोगों के लिए जिनके लिए यीशु ने अपनी जान दी है, अपने खून का हर कतरा बहाया है, उनकी बहाली के लिए दुआ करें, उनकी बरकत के लिए दुआ करें, उनकी निजात के लिए दुआ करें और अपनी जिंदगी के लिए दुआ करें कि खुदावंद हमें मुशर्रफ की तरह फिर से अपने बेटी और बेटा बनाने का ऐलान करें। प्यारी बहन से गुजारिश है